औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। आज हम आस्ताना आलिया चिश्तिया निज़ामिया फ़खरिया पर अपने शेख ख्वाजा इसरारुल हक़ चिश्ती निज़ामी फ़खरी की खिदमत में हाज़िर हैं। एंड द पर्सनैलिटी वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ हज़रत अबुल हसन अली इब्न उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, also known as Data Sahib and also known as Data Ganj Baksh. Ganj Baksh means the bestower of the spiritual treasures. जितने भी सूफिया इकराम आपके बाद आए, they all admitted and submitted to the spiritual authority and the level of knowledge of Data Sahib. Even Data Sahib became the spiritual guide for all the Sufi saints that came after him. आपकी शान का यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ए स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, he was in a gathering once and he said, I, Abdul Qadir, would have taken him as my spiritual guide if I was in his time. हज़ूर गौस पाक फरमाते हैं कि अगर मैं दाता साहिब के दौर में होता तो मैं उनका मुरीद होता। आप अंदाज़ा लगाएं कि हज़ूर गौस पाक इज़ द पायनियर ऑफ कादरिया सिलसिला। Another great spiritual personality, Hazrat Moinuddin Chishti Gharib Nawaz Rahmatullah Ta'ala alayh. When he came to Lahore, he did a chilla at Data Sahib tomb. Any specific zikr और रियाज़त और इबादत जिसको 40 दिन में किया जाए उसको चिला कहते हैं। तो गरीब नवाज़ हजूर दाता साहिब की स्पिरिचुअल अटेंशन और तवज्जो के लिए 40 दिन मज़ार शरीफ पर चिला कश रहे। एंड अनदर ग्रेट स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप भी हज़रत दाता साहिब के मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दिया करते थे just for his spiritual attention and tawajjuh. Even among the top Sufi scholars, top Sufi saints, the rank of Data Sahib is unparalleled. कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करेंगे। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूर खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा, मतलाए अनवार अज़ल मज़हरे फैज़ मुस्तफ़ा, अज़ अताज मुस्तफ़ा गंज बख्श औलिया, गौस कुतबो अब्दालन बरदरत अफ़गंदा सर, यक नज़र अज़ फैज़ तो सरमाया ये कुर्बे खुदा, ताज बज़्म औलिया शम्म जामे आशिका, किबला ये अरबाब दिल मुक्तदा ये अहले सफ़ा। The bestower of the treasures, the grace of the universe, the manifestation of the light of God, the perfect guide for the imperfect and the guide of the perfected, the dawn of the eternal lights, the manifestation of the blessings of the chosen prophet, through the bestowal of the Prophet Muhammad, the treasure bestower among the saints. The Ghaus, the Qutb and the Abdals bow their heads at your threshold. A single glance of your grace becomes the wealth of nearness to Allah, the crown of the gathering of saints, the candle of the assembly of lovers, the Qibla of the people of heart, the guide of the people of purity. अब हम हज़रत दाता साहिब की अर्ली लाइफ को कुछ डिस्कस करेंगे कि हाउ ही स्टार्टेड ऑफ एंड हाउ ही स्पिरिचुअली एलिवेटेड। आप गज़नी में पैदा हुए, इल्म कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और फ़िलासफ़ी की तालीम आपने गज़नी में हासिल की। एंड एट दैट टाइम Ghazni was the center of education in Central Asia. And after that, he went out in the search of his spiritual master. And after time in Syria, he became the murid of Hazrat Abul Hasan Khatli Rahmatullah Ta'ala alayh. Hazrat Abul Hasan Khatli Rahmatullah Ta'ala alayh belonged to Junaidiya order. And Junaidiya order, as you know, is after the name of its pioneer, Hazrat Junaid Baghdadi Rahmatullah Ta'ala alayh. Hazrat Data Sahib, under the teachings of his Shaykh, ate less, slept less, and performed tough contemplations and meditations. Another Sufi personality, Hazrat Mira Hussain Zanjani Rahmatullah Ta'ala alayh, who was the Peer Bhai of Hazrat Data Sahib. He was stationed in Lahore. जब उनका वक्त विसाल करीब आया
तो हज़रत अबुल हसन ख़तली रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि हज़रत दाता साहिब के पीर थे, उन्होंने हज़रत दाता साहिब को हुक्म फरमाया कि अब आप लाहौर तशरीफ़ ले जाएं। एंड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ हिज पीर, हज़रत दाता साहिब केम टू लाहौर। देयर इज़ एन इंसिडेंट जिसमें दाता हजूर वॉज इंटेंगल्ड इन ए स्पिरिचुअल मिस्ट्री। अब इसमें आप देखें कि किस तरह से ही, for this spiritual mystery, for his spiritual answers, what steps he took. For that, he went to the tomb of Hazrat Bayezid Bastami Rahmatullah Ta'ala alayhi. And there, he engaged in his spiritual practices and meditations for many days. और फिर उन spiritual practices और meditations के जो उन्होंने दिनों वहाँ पे किए, उसके बाद हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तवज्जो फरमाई, अटेंशन, स्पिरिचुअल अटेंशन उनकी तरफ फरमाई। फिर द स्पिरिचुअल मिस्ट्री वाज रिजॉल्व्ड एंड हज़रत दाता साहिब गॉट द आंसर्स फॉर हिज क्वेश्चंस। एज वी ऑल नो, हज़रत दाता साहिब बिलोंग्स टू हनफी स्कूल ऑफ थॉट, एंड देयर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल इंसिडेंट that he was once at the tomb of Hazrat Bilal Habshi Raziyallahu Ta'ala anhu, and he performed his spiritual practices, his meditations, and that day that night he slept at the tomb, and his dream he saw Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam carrying an old man, and he was in Makkah. आपने ख्वाब में देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़े शख्स को उठाया है, और ये मंज़र आपने ख्वाब में मक्का शरीफ में देखा। तो जैसे ही आपने हुजूर को देखा तो आपकी कदम बोसी की, एंड हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, दिस ओल्ड मैन इज़ अबू हनीफा, योर इमाम। आफ्टर दिस, दाता साहिब inclined towards हनफी स्कूल ऑफ थॉट। आज के दौर में वी हैव abundance of knowledge. We have books, we have novels, fiction, non-fiction, but this knowledge is subjective. We lack objective knowledge. And by the excessive subjective knowledge, people nowadays believe that Sufis are illiterate. But in reality, Sufis are highly knowledgeable and literate personalities. और बल्कि यही नहीं, सूफिया इकराम बे-इल्म और बे-अमल को कभी रूहानियत की तलीम नहीं फरमाया करते थे, क्योंकि सूफ़ी होता ही इल्म व अमल वाला है। इल्म इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम तसव्वुफ़, तसव्वुफ़ इज़ द सेकंड स्टेप ऑफ इल्म, और यू कैन से द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इल्म इज़ तसव्वुफ़। इसमें एक मैं वाक़या आपके खिदमत में पेश करूँगा कि किस तरह से सूफ़ी तलीम फरमाते हैं, सूफिया इकराम जो हैं वो किन लोगों की तालीम फरमाते हैं और किस तरह से तालीम फरमाते हैं। एक वाक़या दाता हजूर का आपकी खिदमत में पेश करेंगे, दैट ही वॉज वंस स्टेइंग एट निशापुर, एंड देयर यूज्ड टू बी अ वेरी नॉन स्कॉलर फॉर हिज fierce argumentative style in kalam. The scholar attempted to draw Data Sahib into a long, pedantic dispute over abstract physical terminology regarding the divine attributes. Data Sahib listened patiently and remarked, "You have spent your entire life studying the rules of debate so you can defeat other men in speech." दादा साहब फरमाते हैं कि तुमने अपनी सारी ज़िंदगी इस तरह से इस तकरीर के इस अंदाज़ को सीखने में गुजारी कि तुम दूसरे शख्स को शिकस्त दे सको। अब आप अगली बात पे गौर कीजिए जो हुजूर दाता साहब ने फरमाई, ये मार्फत से इसका ज़्यादा ताल्लुक़ है। हुजूर दाता साहब फरमाते हैं, बट हैव यू स्पेंट अ सिंगल डे लर्निंग हाउ टू डिफीट योर ओन ईगो? क्या खूबसूरत बात है। दाता साहब फरमाते हैं, क्या तुमने एक भी दिन इस चीज़ को सीखने में लगाया कि किस तरह से तुम अपने नफ्स को और अपनी ईगो को डिफीट करो, उसको हरा सको। अब आप देखें कि दाता साहब जो तलीम फरमा रहे हैं, द पर्सनैलिटी जिसको तलीम फरमा रहे हैं इज़ अ स्कॉलरली पर्सनैलिटी, को बेइल्म शख्सियत नहीं है, वहाँ की जानी मानी एक स्कॉलरली पर्सनैलिटी है। और वो ही स्कॉलरली पर्सनैलिटी हज़रत दाता साहिब की इस मार्फत को समझ सकी, और उस पे द स्कॉलर वाज स्ट्रक बाय द सिंसियरिटी एंड डायरेक्टनेस ऑफ द रिमार्क, एंड ही वाज amazed. He understood what Data Sahib was saying.
recognizing that his intellectual pride has become an obstacle to true realization. He ended the debate and asked Data Sahib to instruct him in the discipline of the heart. He requested Data Sahib कि आप मुझे अब in the discipline of the heart तालीम फरमाएं. आप देखें कि सूफिया इकराम तालीम किस तरह फरमाते हैं, किस तरह से एक सेंटेंस में हज़रत दाता साहिब ने सवाल भी पूछा और जवाब भी दिया, और सिर्फ आलिम को, बेलम को नहीं, आलिम को दिया, और समझने वाला आलिम है, मार्फत को समझा, करेक्टेड हिज कोर्स और आपसे तालीम तलब फरमाई. इसी की कंटिन्यूएशन में एक और वाक़या है जो आपकी खिदमत में एक अरशाद है हज़रत दाता साहिब का. उससे पहले हमें समझना है कि आज के दौर में पीपल आर डूइंग अ लॉट ऑफ ज़िक्र एंड अस्कार, इबादत, रियाज़ात, चिला, दे आर इंगेज्ड इन मल्टीपल एक्टिविटीज़. आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द भी लोग ज़िक्र अस्कार में मशगूल हैं, बट उसका असर नज़र नहीं आता. देयर इज़ नो इफ़ेक्ट, उसका कोई इम्पैक्ट सोसाइटी में नज़र नहीं आता. उसकी क्या वजह है? उसकी सिर्फ एक वजह है, नफ्स, ईगो. दाता साहिब फरमाते हैं नफ्स की मुखालफत सब इबादतों का असल है और मुजाहिदों का कमाल है. नफ्स की मुखालफत से ही इबादत का असल हासिल होगा और मुजाहिदात का कमाल हासिल होगा. तो किसी भी ज़िक्र की, किसी इबादत की, किसी मुजाहिदे की, उसके कमाल को, उसकी बरकत को, उसके असर को तब ही हम पा पाएंगे जब हम अपने नफ्स की मुखालफत करेंगे. व्हेन वी स्टार्ट डिफीटिंग आवर ओन नफ्स, आवर ओन ईगो, द इम्पैक्ट ऑफ इबादा इज़ रिवील्ड एंड द ट्रू लेवल ऑफ एसेटिसिज्म इज़ अचीव्ड. असल उस वक्त ही पहुँचेंगे जब हम नफ्स को, वी डिफीट आवर नफ्स. और हमारे माशरे में जितनी भी इंडिविजुअल लेवल पर, कलेक्टिव लेवल पर, सोसाइटल लेवल पर, फैमिली लेवल पर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका एक मेजर रूट कॉज है, वो है ईगो, नफ्स. नॉट ओनली इन योर इबादा, योर ज़िक्र अस्कार, योर रियाज़त. नफ्स सिर्फ उसी में प्रॉब्लम नहीं पैदा करता, वो आपकी इंडिविजुअल लाइफ में भी, कलेक्टिव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, सोसाइटल इंगेजमेंट्स में, उसमें भी प्रॉब्लम पैदा करता है. और इसी की कंटिन्यूएशन में एक कॉल कि नफ्स की मुखालफत और फिर आगे उसके बाद क्या करें. एक कॉल हज़रत दाता साहिब का आपकी खिदमत में पेश करेंगे. ईमान और मार्फत की इंतहा इश्क और मोहब्बत है, और मोहब्बत की इलामत बंदगी है. क्या खूबसूरत बात है कि ईमान और मार्फत की इंतहा इश्क और मोहब्बत है, और मोहब्बत की इलामत बंदगी है. सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ईमान और मार्फत की तरफ लेके जाने वाला रास्ता कौन सा है. इश्क और मोहब्बत तो इसकी इंतहा है, बट ईमान और मार्फत तक जाया कैसे जाए. आफ्टर डिफीटिंग योर ईगो, यू टेक योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ईमान एंड मार्फत. इसके बाद ही इंसान ईमान और मार्फत में दाखिल होता है, और इसकी इंतहा को उस वक्त पहुंचता है जब वो इश्क़ इलाही में गर्क होता है. और इसकी अलामत, इसकी पहचान बंदगी है, आजिज़ी है, सबमिशन है. इश्क़ इलाही में गर्क होगा, उसकी अलामत उसकी बंदगी है. एंड ही नीड्स टू सबमिट टू हिज पीर, ही नीड्स टू सबमिट टू द टीचिंग्स ऑफ हिज पीर, हिज शेख, so that he can reach मार्फत इलाही. जब वो सबमिट करेगा, नफ्स को डिफ़ीट करेगा, अपने नफ्स को हराएगा, ईगो को ख़त्म करेगा, फिर सबमिट करेगा अपने शेख को, तब ही उसको मार्फत इलाही, इश्क़ इलाही और ईमान हासिल होगा. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि नफ्स को डिफ़ीट करके आप किस तरह से आगे चलें. ये स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि हाउ अ सालिक हक़ शुड डू. पहला ही स्टेप मार्फत हक़, ईमान, ये नहीं, इससे पहले आप ईगो को डिफ़ीट करेंगे, देन यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. उसके बाद दूसरा टॉपिक है करामत.
करामत के मौजू को शुरू करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि करामत है क्या और करामत क्यों दिखाई जाती है, इसकी हकीकत क्या है। वलीउल्लाह करामत सिर्फ ईमान दिलाने और ईमान को मजबूत करने के लिए करते हैं। जो करामत वलीउल्लाह दिखाते हैं उसके पीछे सिर्फ वजह ईमान की मजबूती करना और ईमान दिलाने के लिए करना है। वलीउल्लाह अपनी तारीफ़ के लिए करामत नहीं किया करते। इसका एक कॉल हज़रत दाता साहब का आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि करामत वली की सदाकत की अलामत है और इसका ज़हूर झूठे से नहीं होता। अगर किसी बुज़ुर्ग से आज के दौर में या किताबों में हम पढ़ते हैं करामत का ज़हूर हो तो ये उनकी वलायत की सदाकत है और ये किसी झूठे शख्स से इसका ज़हूर नहीं है। एक इंसिडेंट विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल दैट हैपेंड इन लाहौर। ये लाहौर की बात है। जब हजूर दाता साहब लाहौर तशरीफ़ लाए तो एक मस्जिद की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। कुछ उलमा इकराम उन्होंने इतराज़ किया, रिलीजियस स्कॉलर्स कंप्लेन दैट द डायरेक्शन ऑफ द किबला इज़ नॉट करेक्ट, कि जो किबला की डायरेक्शन हजूर दाता साहिब ने सेलेक्ट की है या चूज़ की है वो करेक्ट नहीं है। हजूर दाता साहिब सेड नथिंग एंड ही इन्वाइटेड देम टू प्रे, और हजूर दाता साहिब ने ख़ुद जमात की इमामत करवाई। जब जमात शुरू हुई, इमामत हजूर दाता साहिब करवा रहे थे तो दौरान नमाज तमाम लोगों के ज़ाहिरी हिजाब उठ गए और उन्होंने खुली आंख से अपने सामने खाना काबा देखा। खुली आंख से मक्का में खाना काबा शरीफ को उन्होंने हजूर दाता साहिब की इमामत में देखा। लाहौर में जो उल्मा इतराज़ करते हैं कि दाता साहिब का डायरेक्शन ऑफ किबला जो उन्होंने मस्जिद में रखा है इज़ नॉट करेक्ट, which in itself was an evident that the direction of Kaaba set by Data Sahib was correct, and they all witnessed it with their open eyes. तो करामत का ज़हूर दाता साहिब की या करामत का ज़हूर आपकी वलायत की सदाकत है। और मालूम होता है कि ये उनके ईमान की कोर्स करेक्शन, अगर डायरेक्शन दाता साहिब ने जाना कि ये उलमा इकराम अगर इकट्ठे होकर इफ़ दे आर कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग तो उनकी करेक्शन कैसे की आपने, ज़ाहिरी हिजाब उठाए और मक्का शरीफ में काबा शरीफ की ज़ियारत करवाई। मौजू का इख्तिताम भी इल्म पर ही करेंगे। अ बुक कश्फुल महजूब, द रेवलेशन ऑफ द हिडन, रिटन बाय दाता साहिब हिमसेल्फ। अ बुक दैट एग्जिस्ट्स एज अ गाइड अमंग अस फॉर मोर देन 900 years and that exists for the truth seekers, सालकीन हक, and till day helps them spiritually. आज भी कश्फुल महजूब सालकीन हक के लिए एक राह हदायत है। A complete book which tells a सालकीन हक या यारान तरीक़त के लिए, तरीक़त पे चलने वाले शागिर्दों के लिए, सालिकीन के लिए, कुर्ब इलाही की मंजिल पर चलने वाले लोगों के लिए एक कंप्लीट गाइड है। For 900 years till day। और इल्म की अहमियत आप इधर से अंदाज़ा लगाइए कि हज़रत दाता साहिब वॉज एन इनसेशिएबल सीकर ऑफ नॉलेज। कश्फुल महजूब में आप फरमाते हैं दैट ही स्पेंट 40 years ट्रैवलिंग अक्रॉस द इस्लामिक वर्ल्ड। एंड ही इज़ मेंशन्ड खुरासान, फ़ारस, इराक, सीरिया, हिजाज, एंड primarily to meet spiritual masters and verify sacred texts at their source। इल्म के लिए आप मुल्क दर मुल्क घूम रहे हैं, एक इलाका नहीं, एक शहर नहीं, मुल्क, इल्म के लिए। एंड ही सेज दैट फॉर 40 years 40 साल आप इल्म के लिए you have traveled across the Islamic world। An incident he narrates that he heard of a rare treatise on Sufi doctrine in the possession of a scholar living in a distant town in Khorasan। He immediately set out on foot। आप रवाना हो गए। यह ख़बर मिलते साथ ही दाता साहिब रवाना हुए एंड ट्रेवल्ड फ्रॉम इराक टू खुरासान।
इराक से रवाना हुए खुरासान की जानिब टू ऑब्टेन इट। आप देखें कि ख़बर मिलते ही इराक से पैदल खुरासान आप रवाना हो गए। सो दिस इज़ द इनसेशिएबल सीक ऑफ नॉलेज, कि किस तरह से हजूर दाता साहिब ने इल्म हासिल किया और किस तरह से वो डिवोटेड थे इस पे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और आज हमें भी चाहिए कि हम इल्म की तलब और तड़प अपने अंदर पैदा करें। और आखिर में एक इरशाद हज़रत दाता साहिब का, सूफ़ी वो है जिसके एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में सुन्नत रसूल हो। सुभान अल्लाह। Anyone who is away from Quran and Sunnah is not Sufi। आपने फरमाया कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में सुन्नत, तो दोनों चीज़ें सूफ़ी के पास होनी चाहिए। अगर एक भी चीज़ उसमें मिसिंग है, then he is not Sufi। A Sufi is the one who has the knowledge of Quran and Sunnah, and then only he will be given the Marfat Ilahi, and then only he can achieve Marfat Ilahi। और जब ये दोनों चीज़ों पर सूफ़ी हो, तब ही वो लोगों के लिए राह हिदायत होगा। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।